Hello dear students, welcome back to the chemistry class. As we studied in the last class, hello dear students, welcome back to the chemistry class. In the last class we have studied about the laws of chemical combinations. Law of conservation of mass, law of constant proportion, law of definite or constant proportion. Hello dear students, welcome back to the chemistry class. In the last class, we have discussed about laws of chemical combination, right? Law of conservation of mass, law of constant or definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal relation, and Gay-Lussac's law. So in this class, we will discuss about some of the numerical problems which related to the laws of chemical combinations. On law of conservation of mass, definite proportion, multiple proportion, and reciprocal proportion. Okay, let's start with the problem on law of conservation of mass. Here, it is a one problem. This question is asked many times. Take the question. 6.3 grams of sodium bicarbonate NaHCO3 is added to 15 grams of acetic acid. 15 ग्राम of acetic acid, देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने 6.3 ग्राम of sodium bicarbonate is added to 15 ग्राम of acetic acid, the residue is found to weight, or the weight of residue is found that the residue is found to weight 18 gram, full stop, what is the weight of, or what is the mass of carbon dioxide gas released or liberated? ये एक क्वेश्चन है, सिंपल है. फर्स्ट आप ये देखिए यहां पर गिवन रिएक्शन क्या है. सोडियम बाइकार्बोनेट when it is reacting with acetic acid, sodium bicarbonate है NaHCO3 when it is reacting with CH3COOH. What is the product? Product यहाँ पर क्या है? Aqueous solutions of CH3COONA, sodium salt plus carbon dioxide gas is liberated in this case. That is sodium plus water plus CO2. Water बोले तो aqueous में मैं represent किया. This is a precipitate residue. यहाँ पर दिया है 6.3 gram of sodium bicarbonate is added to 15 gram of acetic acid. If residue is found to weight 18 gram, then what is the mass of carbon dioxide? That is the X. Now, as you know that the law of conservation of mass states that masses of reactant is always equals to the total masses of product. So यहाँ पर reactant कौन सा है? ये दोनों reactant है. इसका मास कितना है? 6.3 और इसका 15. Total masses of reactant कितना हुआ यहाँ पर? 6.3 plus 15. This must and should equals to the mass of product. That is 18 plus mass of carbon dioxide, that is X. तो X सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये इक्वेशन से आप. So what will be the value of X? So here the X is equals to 15 plus 6, that is 21.3 minus 18. Therefore X is equals to 3.3. X is equals to 3.3 grams. हो गया यहाँ पर, right? So next similar problem है और एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए इसके ऊपर. सिमिलर प्रॉब्लम, suppose
Suppose if 22 grams of lead nitrate, कितना 22 grams of lead nitrate PbNO3 taken twice, when it is reacting with 22 grams of lead nitrate react with X grams of potassium iodide, X gram of Ai, this gives rise to 27 gram of lead iodide PbI2 plus 32 gram of KNO3. Find the value of X in this reaction. Find the value of X. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 22 gram of lead nitrate है, this combining with X gram. All the data they have given. So as per the statement, X plus Y is equals to A plus B, masses of reactant is equal to masses of product, where you can find the value of X. Problem solve कीजिए. The next problem. Take the next problem here. 2 grams of metal burns with oxygen. 2 gram of metal M burns with oxygen gave 3.2 grams of its oxide, metal oxide formula. 2 gram of a metal M, when it burns with oxygen, it gives 3.2 grams of metal oxide. Now क्वेश्चन कंटिन्यू है अभी यहां पर 1.42 gram of same metal M when treated with steam बोले तो water in gaseous phase. When it treated with the steam, it gives it gave कितना दिया यहाँ पर 2.27 gram of its oxide. Full stop. Which law is shown by this data? This data is in agreement with dash. Which law is shown by this data? एक क्वेश्चन है. तो ये जो डाटा यहां पर दिया है, according to this data, whether it satisfy law of conservation of mass, definite proportion, multiple proportion, reciprocal relation, कौन सा law satisfy करते हैं यहां पर? ये क्वेश्चन पूछा है. Let us check. Metal plus oxygen gives rise to metal oxide. कितना है metal? 2 gram. Burns in oxygen. 2 gram of metal gives rise to metal oxide. कितना है यहाँ पर? Metal oxide is 2 gram. This gives rise to 3.2 है. ये first case में. This is in the presence of air, oxygen. Second one. Same 1.42 gram of same metal, but in the presence of steam, this gives rise to again metal oxide आ रही है यहाँ पर भी product. But 1.42 gram of metal, this gives rise to 2.27. ये दिया है terms. Now these data are in agreement with which law? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप law of conservation of mass. लेकिन यहां पर टू डिफरेंट कंडीशंस दिया है. मासेस ऑफ रिएक्टेंट, मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऐसा नहीं ले सकते यहां पर. तो आप सेकेंड लॉ क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है. उसका स्टेटमेंट क्या है? गिवन कंपाउंड कंटेनिंग सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज गिवन कंपाउंड कंटेनिंग सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द डेफिनेट रेशियो. तो आप वो चेक कर सकते हैं यहां पर. मेटल का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है इन द मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है. Irrespective of the method of formation,
ये जो मेटल ऑक्साइड है, इट इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेम मेटल है, स्टीम के साथ रिएक्ट करके भी मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं हम। सो दो डिफरेंट मेथड है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। सो दोनों मेटल ऑक्साइड ही है, बट इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। नाउ चेक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन इन दिस केस। नाउ इन द फर्स्ट केस, in this first case, percentage of metal is equals to mass of metal by total mass into 100। परसेंटेज बोले तो कितना, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, उसका फार्मूला पता है? परसेंटेज ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। अब टोटल वेट कितना है? 3.2 है, राइट? मास ऑफ मेटल कितना है? 2 ग्राम है। सो परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय total weight 3.2 into 100, that is equals to 200 divided by 3.2। ये कितना होता है आंसर? 200 by 3.2। उसका आंसर है 200 by 3.2 62.5। check it, 62.5% in the first method। 62.5% of metal is present in first case। Now let us check the second case। second case में क्या है? Same percentage of metal M is equals to mass of metal कितना है? 1.42 है, 1.42। total mass कितना है? 2.27 into 100, that is equals to 100 से मल्टीप्लाई किया तो 142 divided by 2.27, that is equals to, ये कितना आएगा? अगर दोनों आंसर सेम आया तो this represents these data are in agreement with the law of constant composition, or we can say the law of definite proportion। अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट आया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी नहीं है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी नहीं है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपको? This is also same 62.5%। So both the percentage of metal is the same in both metal oxides, which is formed by different methods. So these data indicates that this data, the given data, is in agreement with the law of definite proportion. The law of definite proportion, like this. Now the next problem. We move to the next problem। Take the next problem। phosphorus and chlorine forms two compounds। phosphorus and chlorine forms two compounds। first compound contains 22.54% of phosphorus and 77.46% of chlorine, whereas the second compound contains 14.88% of phosphorus and 85.12% of chlorine. Show that these data are in agreement with multiple proportion। show that these data are in agreement with multiple proportion, law of multiple proportion। यहां पर ऑलरेडी आपको एक हिंट दिया है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। These data are in agreement with multiple proportion। Now recall the statement of multiple proportion। multiple proportion क्या है?
If two elements combines with each other to form more than one product, then masses of one element which combining with fixed mass, यहां पर देखिए fixed mass of other element are in the simple whole number ratios. Now हमको भी यहां पर सेम स्टेटमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा. Look at the first compound. In case of first compound, ये कैसा सॉल्व करना? In case of first compound में फास्फोरस एंड क्लोरीन है. इसका मास, दोनों का मास दिया है. नाउ हियर वी नीड टू मेक द मास ऑफ आइदर फास्फोरस और क्लोरीन एज कांस्टेंट. एक का मास कांस्टेंट रखे तो दूसरा का मास वैल्यू में वेरिएशन आएगा. उसका रेशियोस देखना पड़ेगा आपको. अगर वो रेशियो सिंपल होल नंबर रहा तो दिस इंडिकेट्स इट इज एन एग्रीमेंट विद मल्टीपल प्रोपोर्शन. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा 22.54% है. दैट मीन्स 100 ग्राम ले रहा हूं मैं. ग्राम ऑफ फास्फोरस कंबाइंस विथ 77.46 ग्राम ऑफ क्लोरीन. इज इट राइट? इतना परसेंट 22.54 फास्फोरस है, रिमाइनिंग क्लोरीन है. तो 22.54 ग्राम ऑफ फास्फोरस कंबाइनिंग विथ दिस मच. अगर ऐसा है तो 1 ग्राम फास्फोरस को क्लोरीन कितना यूज होता है, यहाँ पर कितना कंबाइंड होता है. I am making it as a constant. In this place you can take 1 gram, 10 gram, 50 grams, 100 gram, etc. वो बोले इसका वैल्यूज, एक का वैल्यूज हम कांस्टेंट ले रहा हूं मैं. सो आई एम कीपिंग दिस मास एज कांस्टेंट. इन नेक्स्ट केस में भी 1 ग्राम ऑफ फास्फोरस यू नीड टू टेक. ओके, सो 1 ग्राम ऑफ फास्फोरस कंटेन्स हाउ मच क्लोरीन. सो इसका आंसर आपको मिलेगा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 77.46 divided by 22.54. What is the answer? It is first case. फर्स्ट केस का है ये. इसका आंसर कितना आएगा आपको? This gives us to 77.46 divided by 22.54, that is equals to 3.44. इसका आंसर है 3.44 grams. चेक कीजिए आंसर 3.44 grams. Now in the second case, in second compound में दिया है, क्या दिया देखिए यहाँ पर सेकंड कंपाउंड में 14.88 ग्राम ऑफ फास्फोरस combines with 85.12 gram of chlorine. Now again कांस्टेंट रखना है, इसलिए मैं 1 ग्राम फास्फोरस अगर रहा था तो ये किसके हाउ मच क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ फास्फोरस. हाउ मच देखिए यहाँ पर. सो दिस इज इन अग्रीमेंट विथ 85.12 divided by 14.88. What is the answer? 85.12 divided by 14.88. Your answer is 5.72. 5.72. Now इन दोनों का रेशियो क्या है? What is the ratio of these two? Ratio is, इसका रेशियो ये दोनों को डिवाइड करके देखिए. 5.72 divided by 3.14 कितना आएगा? It is 1:1.66 रेशियो में है. 1.66. दैट इज नथिंग बट इसको सिंपल होल नंबर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा ये? इट इज 3:5. द रेशियो इज 3:5 रेशियोस में दिया है. सिंपल होल नंबर रेशियोस. When two elements combining with each other, phosphorus and chlorine, then the ratio of masses of one element, देखिए क्लोरीन का मासस है ये वेरिएबल है यहाँ पर, क्योंकि फास्फोरस का मास तो 1 ग्राम मैंने यहाँ पर कांस्टेंट रखा है. The ratio of masses of one element which combining with a fixed gram of other element are in the simple whole number ratios. So therefore this indicates the law of multiple proportion. ठीक है, this data indicates it is in agreement with the law of multiple proportion. Law of multiple proportion. Please note the answer. Now we'll move to the next problem. और एक प्रॉब्लम देख लीजिए. Is it complete? Okay, take a snap. The next problem is two metal oxides contains next problem. Two metal oxides
contains, two metal oxides containing 27.6% and 30% of oxygen respectively. First off, if the formula of first compound is, कौन सा है, मेटल ऑक्साइड है, formula of first compound is M3O4, then what is the formula of second compound? सेकंड कंपाउंड का फार्मूला क्या है? सिंपल है, मेटल ऑक्साइड्स का परसेंटेज दिया है, मेटल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, दैट मींस इनडायरेक्टली मेटल का परसेंटेज भी दिया है, और एक का फार्मूला दिया है, दूसरा एलिमेंट का फार्मूला पूछ रहा है आपको। तो यहां पर क्या करना चाहिए आपको? फर्स्ट नोट दिस सॉल्यूशन देखिए इसका। टू मेटल ऑक्साइड्स है मेरे पास। नाउ फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट ऑक्साइड कंसीडर किया मैं। फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल एंड ऑक्सीजन, मेटल का परसेंटेज कितना है? फर्स्ट ऑक्साइड, इसका फार्मूला भी दिया है, M3O4 दिया है यहां पर। ऑक्साइड का परसेंटेज दिया है यहां पर 27.6। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेटल? 100 माइनस 27.6, 100 माइनस 27.6 कितना होता है? 100 माइनस 27, दैट इज 72.4। एक कंपाउंड दिया है यहां पर। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ मेटल दिया है आपको, राइट? परसेंटेज ऑफ मेटल इज गिवन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ मेटल? यहां पर देखिए, परसेंटेज ऑफ मेटल M इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल बाय टोटल मास इनटू 100, राइट? लेट अज्यूम दैट, यहां पर लेट एक पॉइंटिंग, लेट मास ऑफ मेटल M is X। मेटल का फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ मेटल बाय टोटल मास। टोटल मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये कंपाउंड का मास चाहिए मुझे, सो 3 मेटल आयन है, 3 इंटू मेटल आयन प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, ये टोटल मास है। ये दिस इज, ये टोटल मास आया है तुम्हारा, टोटल मास। सो दैट इज 3x प्लस 16 4 that is 64 into 100, that is equals to, what is the percentage of metal? Percentage of metal is given, that is 72.4. Simplify this equation, you will get the value of x. So 100x is equals to 72.4 into 3x plus 64. So that is equals to 72 into 3x, 72 into 3x, 217.2x plus 64 into 72.4, 4633, 4633.6, ये 100x हो। सो 100 300, यस। यहाँ पर मास ऑफ मेटल कितना है? 3 मेटल से, सो 3x लेना पड़ेगा, 3x। सो ये 300x है, 300 और ये 200, 300 माइनस 217.2, 82.8x is equals to 4633.6. Therefore, x is equals to 4633.6 divided by 82.8. That is equals to, x is equal to कितना आएगा आपको? 56। चेक कीजिए मैथमेटिक्स का पार्ट, x is equal to 56 आया। तो एक पार्ट हो गया आपका। So according to the first compound, first oxide M3O4, इसमें मास ऑफ मेटल 3 मेटल आयन्स आर देयर। मेटल का मास मैंने x लिया, सो 3 into x 3x, मास ऑफ मेटल 3x है, मास ऑफ मेटल इज 3x। मास ऑफ ऑक्सीजन इज 64। तो परसेंटेज में मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ टोटल मास। तो आप यहाँ पर ऐसा रिवर्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेटल की जगह यू कैन टेक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन 64 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू 27.6। वो सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा?
इसका मास पता है 64, x का वैल्यूज मिलेगा आपको बिकॉज 3x वी आर गोइंग टू सॉल्व द x वैल्यूज, x का वैल्यूज आ गया। नाउ इन द सेकंड केस, इन सेकंड ऑक्साइड में मेटल एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज 30 दिया है, 30 ऑक्सीजन परसेंटेज है तो 70 इसका है। परसेंटेज दैट मींस ग्राम, 70 ग्राम मेटल 30 ग्राम ऑक्सीजन है। फाइंड आउट इट्स मोल। मोल्स कैसे, गिवन मास बाय, यहां पर देखिए मेटल गिवन मास बाय दैट इज इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 56 है, दिस 56 वी हैव कैलकुलेटेड, मेटल का मास 56 है। सो ऑक्सीजन का कितना है 30 बाय 16, ऑक्सीजन का मास 16 है तो कितना हुआ इसका 70 बाय 56, 70 बाय 56 इज 1.25 है। 30 by 16 is 1.875, 1.875. So this is approximately equals to, is 1:1.5 ratios में है, 1:1.5 multiply by 2 किया तो 2:3 ratios, 2:3. That means M2O3 is the formula of second compounds. Second oxide का formula है M2O3, second का formula M2O3। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने मास ऑफ मेटल फाइंड आउट किया यहाँ पर बाय यूजिंग द इक्वेशंस, परसेंटेज ऑफ मेटल का फार्मूला यूज करके मास ऑफ मेटल्स आई हैव कैलकुलेटेड, whereas in the second case by using that values I have calculated the stoichiometry of metal and its oxygen, so it is equals to 2:3. M2O3 is the formula of same compound. Important questions है ये, क्वेश्चंस आपको सेकेंड ईयर टॉपिक में भी समटाइम्स रिपीट होगा ये क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के ऊपर हमने टॉपिक में मेंशन किया था इक्विवेलेंट वेट बोल के, अभी आगे आता है वो कंसेप्ट भी इक्विवेलेंट वेट के रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ ऐसा रहता है, एज पर हम एनसीईआरटी गया तो एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिया, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ऐसा क्वेश्चंस आपको आते हैं। प्लीज नोट दिस। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जाएंगे यहाँ पर, नोट कीजिए यहाँ पर। द नेक्स्ट वन इज, टेक द क्वेश्चन, H2S contains, H2S hydrogen sulfide contains, H2S contains 94.11% of sulfur. H2O water contains 11.11% of hydrogen. Sulfur dioxide contains 50% of oxygen, 50% of oxygen. Show that these data are in agreement with reciprocal relation. These data are in, show that these data are in agreement with a reciprocal relation. Reciprocal relation. Reciprocal relation. यस, रेसिप्रोकल रिलेशन स्टेटमेंट और एक बार रिकॉल कीजिए, यहां पर एक्सप्लेनेशन कर दो मैं यहां पर स्टेटमेंट का। थ्री एलिमेंट्स इफ यू आर, थ्री एलिमेंट्स विच कंबाइनिंग विथ ईच अदर, यहां पर कौन से एलिमेंट है देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर। ये तीनों में किसी एक एलिमेंट का मास आपको कांस्टेंट रखना है। प्रॉब्लम में तो डाटा दिया है, आप कौन सा भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट रख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बट रिमेंबर हाउ यू आर टेकिंग द डाटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सपोज इफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स्ड, अगर इसका मास फिक्स रखे तो दोनों का मास वेरी रहता है, अगर आप ऑक्सीजन का फिक्स रखे तो ये दोनों का मास वेरी रहता है, सल्फर का रखे तो अदर टू आर वेरीज। आप कौन सा एलिमेंट का भी मास फिक्स रख सकते हैं, प्रॉब्लम है। Now suppose let us consider if mass of hydrogen is fixed. अगर इसका मास फिक्स है तो how much, suppose x gram of oxygen is combining with this, y gram of sulfur is combining with this. So इन दोनों का रेशियोज क्या है यहाँ पर, x is to y, x by y, ये एक रेशियो हुआ। फिक्स थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइंड कैसा हो रहा है, x is to y रेशियोज में कंबाइंड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। नाउ अगर ये दोनों सेल्फ कंबाइंड हुआ तो व्हेन इट रिएक्ट विथ ईच अदर देन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज
ऑक्सीजन का रेशियो सपोज इसका रेशियो ये है और इसका रेशियो बी है, देन द रेशियो ऑफ ए बाय बी, ये दो वैल्यूज है, दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियोज और सिंपल मल्टीपल रेशियोज रहना चाहिए। सो एक्स बाय वाई का वैल्यूज जो है ये बाय बी का वैल्यूज भी इधर सेम रहते हैं, नहीं तो सिंपल होल नंबर रेशियोज में रहते हैं, सिंपल मल्टीपल्स रहते हैं उसका। तो ये स्टेटमेंट है आपका। द ratios of two elements which combining with a fixed mass, third element, and when they combines with each other are in the simple whole number ratios or simple multiples। तो ये आपका स्टेटमेंट है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व। तो फर्स्ट केस में गिवन डाटा कंसीडर कीजिए आप। H2S, इन H2S में हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, 94.11% सल्फर है। 100 माइनस 94 6 रहते, सो 5.89% होगा। 5.89 ग्राम परसेंटेज में है, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, दिस कंबाइनिंग विथ 94.11 ग्राम्स ऑफ सल्फर। टोटल 100 है नहीं, देखिए एक बार। ओके, तो एक पॉइंट हुआ। अब मैं मास ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट रखूं, मास ऑफ हाइड्रोजन मुझे कांस्टेंट रखना है, तो इसीलिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कितना, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाउ मच, क्वेश्चन मार्क, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपको, 94.11 डिवाइडेड बाय 5.89, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना आता है आपको, H2S contains sulfur 1 ग्राम को, H2S 88 सल्फर है यहां पर, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 15.98, इसका आंसर देखिए 15.98 ग्राम। कंफर्म करेक्ट, आप चेक कीजिए एक बार। 15.98 दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 16 तक है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को इतना सल्फर रिएक्ट हुआ है, ये सल्फर का है, ये कौन क्या है, ये सल्फर। नाउ इन द सेकेंड कंपाउंड कौन सा है, वाटर। इन वाटर हाइड्रोजन कितना दिया है, 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ 88.89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर भी हमको मास ऑफ हाइड्रोजन फिक्स करना है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ कितना, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहां पर कितना आएगा आपको 88.89 बाय 11.11, दैट इज इक्वल्स टू 88 पॉइंट बाय 11, सो दैट इज इक्वल्स टू 8 ग्राम दिया है, 8 ग्राम ये ऑक्सीजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन 1 ग्राम का कंसिडर किया मैं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। सल्फर कितना रिएक्ट हो रहा है, 15.98 इज रिएक्टिंग विद दिस। ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद दिस। द रेशियो इज, इसका रेशियो क्या है, 8 1 जा 8 2 जा। सल्फर बाय ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 रेशियो है उसका, 2:1। अगर ऐसा है, नाउ when these oxygen and sulfur self combines with each other, that means in third case sulfur dioxide में 50% है, तो 50 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइनिंग विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का रेशियो क्या है, सल्फर बाय ऑक्सीजन का रेशियो है 1:1, 50/50 दैट इज इक्वल टू 1:1। यहां पर रेशियो क्या है, सल्फर बाय ऑक्सीजन का 2:1 है, तो देखिए यहां पर 2:1 रेशियो ये केस में है, डिवाइडेड बाय इसका रेशियो क्या है 1:1, तो ये क्या हुआ 2/1:1, दैट मीन्स 2:1 रेशियो। द फाइनल आंसर इज 2:1। इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सो दीज डाटास आर इन अग्रीमेंट विथ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। फर्स्ट क्या करना, आपको एक एलिमेंट का मास फिक्स रखना है, एक फिक्स रखे तो ये दोनों का मास मिलेगा आपको, उसका रेशियोस लेना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड, ये दोनों सेल्फ रिएक्ट हुआ तो जो रेशियो आता है ना इन दोनों का, वो रेशियो भी लेना पड़ेगा आपको, दैट रेशियो।
ये रेशियो फर्स्ट रेशियो डिवाइडेड बाय सेकंड रेशियो, उसका वैल्यू सिंपल होल नंबर रेशियो पे रहना चाहिए। सेम आर सम मल्टीपल्स ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो रहना, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन। और एक पॉइंट याद रखिए, अगर 3 एलिमेंट आपको मिला तो प्रॉब्लम में देखिए हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सर 3 एलिमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम्स आया तो दैट यूजुअली दैट डिपेंड्स अपॉन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन ही रहते हैं आपको, तो ये इसका प्रॉब्लम। नाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, few more problems on the laws of chemical combinations, laws of chemical combinations. In the next class we discuss about the next concept, Dalton's atomic theory.